Ma'am, we are live now. Hello, everyone. We're back today with Hello. So sorry, I just logged in. I thought you were saying hello to me. I'm having some network yes, issues. I am trying my best to log in, but there's some network issue. So amazing. So in the Hindi Divas today, so we have two famous Hindi kalakars with us. Famous ruk jao. Right now my internet is becoming famous. My internet is not allowing me to log in. No worries, it will. And my camera is not working at all. So please pardon me in case it gets logged out anytime. All right. No worries. Very dicey today, the internet. Yes. Go ahead. Hello, everyone. I thought you were saying hello to me. Go ahead. You can introduce the audience, Mr. Ali, Major Muhammad Ali Shah. So please, over to you. I will until my internet is supporting me until the thing, but my camera is just not coming on. So hello everyone. Greetings on Hindi Divas. On behalf of Empowering Lives, our founder Ragini Agarwal, we present to you all Shefali Chopra, who is going to be narrating a very nice story, who's a storyteller. So who better to have got today to narrate stories in Hindi than the storyteller herself. Let me tell you about her. She is an organ donor, she's a TEDx speaker, a storyteller, a motivational speaker who's doing great work with a lot of underprivileged children. And over to her. Over to the founder first, Ragini. Take over. Wow. So what an introduction from one great speaker to the other. Nothing better on the occasion. Namaste everyone. हमने हिंदी अपनी राष्ट्र भाषा की थी 14 सितंबर में कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में जोड़ा गया था. My Hindi isn't that great and that is why I want to celebrate it more to make my Hindi stronger and better with these two people. They are great mentors and if any errors, please do pardon me. And Hindi संविधान में तब जुड़ा गया था 14 September को, and that is why today it is recognized as the Hindi Divas Day. And it was 1979, 14 September. And today the president and the prime minister, when they meet up, they tell that Hindi would be one of the integral part of the education system, and it would revise. The education system would be revised in accordance to the Hindi. But we have people, Shefali Di Chopra, who is already very she has a D means D company. No, Shefali D is with respect because You can smile, the D company. D, you can smile. Why are you not smiling? She's already smiling. She's she's happy being at Empowering Lives. Yes, empowering so many people with her Hindi, the quality of Hindi that she has. So she's and she'll smile. Yeah. So Shefali Chopra calls herself Ramta Ram, originally coming from Jammu and Kashmir, but grew up in the Middle East. Did her schooling from the Indian school Muscat, Sultan of Oman. She graduated in business studies from International Educational Institute, Dubai. She also did her diploma in computer programming and critical analysis from London City and Guilds College. She comes from an illustrious family of filmmakers, and so creativity is in her genes. So her contribution has been in the sphere of TEDx, being a TEDx speaker, storyteller, motivational speaker, TV panelist, theater exponent, and also she's a philanthropist. On this occasion, Shefali Di, do you want to share anything with the audience today? Yeah. नमस्कार सबको मेरा नमस्कार. आज हिंदी दिवस है. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी मातृभाषा है. मेरा मानना ये है, आज हिंदी दिवस है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी में ही बात करूं. वैसे भी हिंदी मुझे बहुत प्रिय है. कई साल पहले की बात बता रही हूँ, सबके साथ यहाँ पे सबको बताना चाहती हूँ. कई साल पहले जब मैं गल्फ से इंडिया आई और
गल्फ से, गल्फ से, गल्फ से, Okay. मिडल ईस्ट से जब मैं इंडिया आई तो मैं, गल्फ से आए। हाँ जी, तो जब मैं आई तो मुझे क्योंकि हिंदी में बात करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं अक्सर हिंदी में ही बात करती थी और आज भी हिंदी में ही बात करती हूँ। तो मुझे याद है किसी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और बोला कि तुम हिंदी में मत बात किया करो। मैंने कहा क्यों, हिंदी में क्यों ना बात करूं? तो मुझे बोला कि हिंदी में हम अपने स्टाफ के साथ बात करते हैं, अगर तुम हिंदी में बात करोगी तो इट विल बी लाइक बिलो योर डिग्निटी। तो मैं काफ़ी देर तक इंसान को घूर घूर के देखती रही और सोचती रही इसके बारे में मैं ये सोचती रही कि अगर हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलने से कतराएंगे या कोई भी भाषा जो आपके दिल के करीब है, अजीज है, उसे बोलने से कतराएंगे तो नुकसान तो आप ही का है। क्योंकि कहते हैं हर इंसान सबसे ज़्यादा उसी भाषा में एक्सप्रेस कर पाता है, दर्शा सकता है जिसमें वो फील करता है, महसूस बिल्कुल करता बिल्कुल है। बिल्कुल, बेशक। आपके बेस्ट जो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा इमोशंस खुल के आपकी अपनी भाषा में निकलते हैं, चाहे प्यार हो, चाहे नफरत, चाहे गाली गलौज हो, अपनी ही भाषा में बहुत आराम से निकलते हैं। और तभी दूसरे आदमी भी, इंसान, लोग इसको समझ पाते हैं। मेरे लिए हिंदी और उर्दू बहुत इंटीग्रेटेड है, बहुत मिली जुली भाषा है, तो अक्सर मेरी ज़बान में, मेरी बोल में हिंदी और उर्दू मैं इस्तेमाल करती हूँ। बट हाँ, मुझे इस बात का बहुत गर्व है और मैं चाहती हूँ कि हम सब भी इस बात में बहुत गर्व महसूस करें कि ये हमारी भाषा है। ये बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हैं और इनके जो चाचा हैं वो भी बहुत ही मशहूर स्टोरी टेलर हैं, वो फिल्म मेकर हैं। विद्यु विनोद चोपड़ा का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो इनके सगे चाचा हैं। ये अपने मुंह से नहीं बोलती हैं, मगर ये स्टोरी टेलिंग तो इनके खून में है एक तरीके से। और आपने गौर किया होगा कितने अच्छे से ये सुना रही थी। प्लीज। मैं एक मैसेज सबके पास देना चाहती हूँ, वो ये है कि हम कई बार अपने बच्चों को डांट देते हैं और कहते हैं कि इंग्लिश में बात करो। इंग्लिश, of course, it is the language to communicate with the rest of the world. It is very important language, but at the same time, अपनी भाषा को इस तरह से मत निकालिए, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि इस भाषा का उपयोग मत करो और उन बच्चों के साथ मत बात करो जो हिंदी स्पीकिंग हैं, ये बहुत गलत बात है। और अगर हम अपनी ज़बान को इज्जत नहीं देंगे, हम अपनी चीज़ को अहमियत नहीं देंगे, आप मेरा मानिए, ये सबसे बड़ा कसूर होगा हमारा। हमको देखिए देखिए, हम सब जानते हैं ये बात कि हमारी मातृभाषा तो हिंदी और उर्दू है, या पंजाबी है, या जो भी अपनी मातृभाषा हो। रोजी की जबान तो अंग्रेजी है और कंप्यूटर है। लेकिन रोजी की जबान तब आएगी जब हम अपनी मातृभाषा को फख्र से बोलेंगे, जैसे कि बिल- मैडम बोल रही हैं। बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ अली से इस बात में। और हम सबको बहुत गर्व महसूस करना चाहिए जब हम अपनी भाषा में बोलें। हिंदी की बात नहीं करूँगी, चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, उर्दू हो, अम, पंजाबी हो, मलयालम हो, तमिल हो, अपनी भाषा को प्लीज़ उभारें। आज का दिन हमें ये एहसास कराता है कि हमको अपनी भाषा को अहमियत देनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक ज़बान, एक खाना पीना, ये सब लोगों को जोड़ता है और ये मेरा बहुत मानना है, तहे दिल से मानना है। आज के दिवस में मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। ऑफ कोर्स रागिनी ने बहुत ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन मेरा दिया, अली ने बहुत खूबसूरत तरीके से मेरे को नवाजा है। सो मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी जजमेंट को लेके, कि किस प्रकार हम छोटी छोटी बातों को लेके बड़े जजमेंटल हो जाते हैं।
और हमको जजमेंट किसी पे भी रोने करने, वाली कहानी है या हंसने वाली कहानी है, ये बता दीजिए आप। अच्छी वाली कहानी है, सब ओके, ऑल राइट। कहानी है। रागिनी, मैं नेटवर्क बहुत खराब हो रहा है तो माफ कीजिएगा, अगर बाय चांस किसी कारण लॉग आउट हो जाता है तो माफ करेगा दोस्तों। रागिनी इजाजत है कि मैं कहानी शुरू करूं? जब आप सबके साथ करते हैं, छोटे विलेज में जाके आप सबके साथ अपना इमोशंस, आपके प्यार सबके साथ आप स्पेंड करते हो, सो ये एक हमें मौका मिला एम्पावरिंग लाइव्स में आपका ये प्यार और स्नेह पाने के लिए। सो वी जस्ट वेटिंग टू हियर दैट स्टोरी फ्रॉम यू शिफाली जी, एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। सो ये कहानी है कि कैसे हम अ, किसी पे जजमेंट डाल देते हैं। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट जजमेंट। एक आदमी था, उसका नाम दीपक था। दीपक छोटा सा बच्चा था, समझो 10-12 साल का होगा। एक दिन वो घर से निकला और एक दुकान में गया। उसने देखा, जैसे ही दुकान वाले की नजर इधर उधर थोड़ी हिली, फट से उसने वहां से एक पैकेट बन उठा लिया जिसमें 2 बन थे, और वो वहां से जबरदस्त भागा। ऐसा भागा कि वो किसी के हाथ ना आए, मगर पीछे से लोग चोर 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 जोर जोर से चिल्लाने लगे। और लोगों की तो कोशिश थी कि अगर मिल जाएगा तो हम इसको पीट देंगे, और कुछ नहीं 2-4 थप्पड़ तो लगा ही देंगे। मगर उस दिन दीपक ऐसा भागा कि पूछिए मत, जबरदस्त भागा दीपक। और अपने घर में जैसे ही घुसा, उसने फट से दरवाजा बंद किया और जान में जान आई। कोई उसको पकड़ तो नहीं पाया, मगर साथ वालों के घर में किसी ने सुन लिया था, चोर चोर चोर। बोला कुछ नहीं, मगर बस उस दिन दीपक चोर बन गया। उस दरवाजे के पीछे दीपक एक खाट की तरफ बढ़ा। उसकी माँ वहां बुखार में तप रही थी, बहुत हाई फीवर था। उसको उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ बचेगी भी कि नहीं। कैसे करके उसने अपनी माँ को थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाया। वो जो बन चुरा के लाया था, अपनी माँ को खिलाया। कुछ टाइम बाद उसकी माँ ठीक हो गई, और कुछ महीनों में बिल्कुल ठीक हो गई। मगर हमारे पड़ोसियों के लिए दीपक चोर बन गया। कुछ टाइम बाद जैसे ही उसकी माँ ठीक हुई, तो दीपक स्कूल जाने लग गया, वापस जैसे जाया करता था। और मेहनती लड़का था, पढ़ाई में भी बहुत खूब नंबर आते थे उसके। अच्छे से मेहनत करने लग गया और लाइब्रेरी भी जाने लग गया। तो लाइब्रेरियन सोचते थे कि वाह, कितना डेडिकेटेड बच्चा है, यहाँ पे आके पढ़ता है। और स्कूल वाले भी उससे बड़े इम्प्रेस थे। क्योंकि माँ इतनी बीमार रही, तो उसने सोचा कि रेगुलरली रोज के रोज मैं मंदिर जाना शुरू कर दूं। और वो मंदिर जाने लगा। वहां के पुजारी उसको पहचानने लगे। तो पुजारी के लिए वो एक रिलीजियस आदमी बन गया लड़का। स्कूल वालों के लिए तो वो था ही स्टूडियस बच्चा। और जैसे जैसे बड़ा हुआ, आस्ते आस्ते मंदिर जाना बंद हो गया, क्योंकि वर्कलोड भर गया था। और बड़ी क्लास में पहुंचा तो लाइब्रेरी कम जाने लग गया। स्कूल छूट गया तो लाइब्रेरी छूट गई। फिर वो काम करने लगा। और जब काम करने लगा तो क्योंकि मेहनती था, उसने बिजनेस में बहुत तरक्की करी। और सबके लिए वो एक एस्टैब्लिश्ड चकाचक बिजनेसमैन बन गया। और अब मैं इस कहानी को उल्टा ले जाती हूँ। आपने गौर किया होगा कि किसी के लिए ये चोर था, और किसी के लिए ये मेहनती लड़का था, और फिर किसी के लिए ये रिलीजियस बच्चा था। और जब ऑफिस तक आया, जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो सबने कहा वाह क्या बिजनेसमैन है।
शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो वाइफ के लिए बेस्ट हस्बैंड और बच्चों के लिए बेस्ट डैडी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हर इंसान ने दीपक को उतना ही समझा जितना उसको जाना। उसके पड़ोस वाली आंटी फिर भी यही सोचती रही कि दीपक चोर है और जरूर चोरी करके यहाँ तक पहुंचा होगा। इस कहानी से मैं ये दर्शाना चाहती हूँ कि हमें कोई हक नहीं है कि हम एक छोटा सा सेगमेंट जिंदगी का किसी का उठा लें और सोचें कि यही ये है। जैसे एक पेड़ है, बहुत विशाल पेड़, बहुत बड़ा पेड़। आप उस पेड़ को अगर सर्दियों में देखोगे तो वो पत्ते नहीं होते, झड़ चुके होते हैं, क्योंकि जाड़ों में पत्ते जा चुके होते हैं। और जब तक स्प्रिंग और समर आता है, आस्ते आस्ते फूल निकलते हैं, पत्तियां निकलती हैं, फल निकलते हैं। पेड़ इतना संपूर्ण लगता है कि वो लोगों को छाया देता है, फ्रूट देता है, फ्रेग्रेंस देता है, खुशबू आती है। और जब कोई इसको ऐसे समय में देखता है जब इसमें कुछ नहीं होता, तो क्या ये बेजान पेड़ हो गया? नहीं। इसलिए उसी तरह इंसान की जिंदगी और पेड़ की जिंदगी एक सी है। अगर आप एक सीजन में पेड़ को देखकर ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो ऐसा पेड़ है। हम जब पेड़ को पूरा सीजन देखते हैं तो हम कहते हैं अरे कोई नहीं, झड़ गए पत्ते, जाने दो। फूल निकल रहे हैं, अरे वाह, उनको भी इंजॉय करते हैं, फलों को भी इंजॉय करते हैं और खूबसूरत फूलों को भी इंजॉय करते हैं। मंदिर जाते हैं तो कुछ तोड़ लेते हैं, भूख लगती है तो कुछ खा लेते हैं। और जब अच्छा मौसम होता है, धूप निकलती है, हम छाया के लिए भी उसके नीचे बैठते हैं। इस कहानी का ये तात्पर्य है कि हम किसी एक वजह से किसी इंसान को सेगमेंट नहीं कर सकते। पूरा जीवन जीने दो, वही असली इंसान है। एक छोटा सा सीजन देखकर आप किसी इंसान को जज मत कीजिए। हम कई बार अपने बच्चों को भी ऐसे सिखाते हैं कि अरे ये पढ़ाकू नहीं है, इससे दूर रहो। ये हिंदी में नहीं बात करता, इससे दूर रहो। ये खास कपड़े पहन के नहीं आता, इससे दूर रहो। आपको क्या मालूम कि किसकी क्या मजबूरी हो सकती है? नहीं जानते ना? तो आपको और मुझको और किसी को भी ये हक नहीं है कि हम किसी पे जजमेंट थोपें। मैं हमेशा इस कहानी का प्रचार करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि हमें कोई हक नहीं है कि एक पल में हम किसी को बुरा और अच्छा बना देते हैं। आपने कभी सोचा है किसी को अगर आप बुरा बनाते हो उस पर क्या बीतती होगी? और अगर उनको पता चले तो वो तो वर्स्ट है। कैसा लगता होगा उनको? बहुत बुरा। और कितना अच्छा लगता है किसी को किसी के बारे में दो शब्द अच्छे कह दो, बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है ना? आई एम श्योर लगता होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है जिसमें इतनी सी भी अच्छाई ना हो और कोई नहीं है जिसमें इतनी सी बुराई ना हो। सब में होती है, ये सिर्फ नज़रिया होता है। क्यों ना हम कुछ देर के लिए कोशिश करें कि हम लोगों की बुराई भूलकर उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें, क्योंकि अच्छाई तो सब में है। और अगर हम वो कर पाएं, मैं कह सकती हूँ और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हमारे आगे पीछे हमें सब अच्छे लगेंगे, दुनिया भी खूबसूरत लगेगी। इसलिए कॉन्शियसली कॉन्शियसली आप अपने आप से पूछिए कि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं या नेगेटिव। मेरा वोट पॉजिटिविटी के लिए है। मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकती हूँ। नेगेटिविटी ना मैं लेती हूँ और ना मैं लोगों को दूंगी, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मगर यहीं पे एक बात बताना चाहूँगी, हम मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा नहीं है कि हर वक्त हंसते रहते हैं। हमें भी बड़ा एफर्ट करना पड़ता है, रोज़ एफर्ट करना पड़ता है। मगर जब हम सुबह उठते हैं,
शुक्राना करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, ये हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिला है, आपको एक्स्ट्रा मिला है, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। हमें शुक्राना करना चाहिए कि हमें ये दिन मिला, क्योंकि कई बार रात को सोते सोते लोग चले जाते हैं। सो हम बहुत लोगों से बहुत अच्छे हैं और हमको इसका थैंक यू बार बार करना चाहिए। इतना मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। और स्टोरी टेलर या मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब ये नहीं होता कि हमें दर्द नहीं होता। इंजेक्शन लगा बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बट हाँ, हम अपने आप को ये समझाते हैं कि देखो, डर के आगे जीत है, दिस टू शैल पास, ये वक्त गुजर जाएगा। हम अपने आप को रोज ये कहते हैं और इसलिए आप लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि ये वक्त गुजर जाएगा और अगर हंस के गुजारेंगे तो जल्दी गुजर जाएगा और अगर दुखी होके गुजारेंगे मुंह बना के तो फिर गुजरेगा अपने ही तरीके से, मगर इसमें आप ही का नुकसान है। इसलिए प्लीज कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये मेरा मैसेज सबके लिए है। रागिनी, unmute yourself. Yes, that was so beautiful, Shefali Di. The first time you've come to Empowering Lives and giving such beautiful message on the Divas of Hindi Divas. सबसे ज़्यादा इंसान इसी से पीछे, when we judge, someone else, we are all creations of God. Everyone has something that is not good, something that is very good. So if we recognize that good of everyone, and empower each other, handhold each other, help each other grow. I mean, कितना सुंदर ये गुलदस्ता हमारा बन जाएगा. You being a storyteller, I may be having some other quality of mine. Major Muhammad Ali Shah will be having some other quality of his. Som has a different quality of handling the the entire technology, and that is why we have such a beautiful, today's session. So it is coming out to be a bouquet, helping each other. And you have really told the entire thing in such a beautiful story. And it's like your other parts of the story when we hear, the YouTube channel में अगर आप जाके देखोगे उनके दूसरी stories, I was taken aback to know all the stories and I'm curious, I'm waiting for the other day कब मैं दूसरी story इनका, when I'll be able to hear. So coming back to Shefali Di, can you share some more stories? We have lots of time here. People are really waiting to hear more from you. Sure. ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम स्टोरी टेलर्स का काम ही ये होता है। मगर तुमने बहुत खूबसूरत बात कही रागिनी, मैं यहाँ पे अपलॉड करती हूँ और क्लैप करती हूँ तुम्हारे लिए, बिकॉज हम लोग ये एहसास कभी कभी भूल जाते हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ दें, हम क्या नहीं कर सकते। और सच में कोई चीज़ में मैं अच्छी हूँ, कोई चीज़ में कोई और अच्छा है। हमको एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये गलत है। अगर आप सोचें कि मेरे में जो अच्छा है वो तो मेरे में ही अच्छा है, आई एम माई बेस्ट वर्जन, आई डोंट हैव टू कम्पीट विद एनीबडी एल्स। मैं अपने में मुकम्मल हूँ, मुझे किसी और को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उससे बेहतर हो जाऊँ। ये गलत होगा, बहुत गलत, बहुत ही गलत। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं और कोई और किसी और चीज़ में, सच में ये गुलदस्ता है और बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है, बहुत खूबसूरत। हम कहते हैं कि कभी कभी हम लोगों को सेल्फ डाउट हो जाता है और हमें लगता है उफ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है। कौन कहता है कि आप में कमी है? नहीं, हो सकता है मेरी आंखें छोटी हों, मगर हो सकता है मेरी मुस्कान अच्छी हो सकता है मैं बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हूँ जो आप नहीं कर सकते, और मुझे वो सारे काम नहीं आते जो आपको आते हैं। देखो, मुझे बंगाली बोलनी नहीं आती,
मगर हाँ मुझे माछी झोल खाना आता है। वो मैं अच्छे से खा सकती हूँ और बहुत खुशी खुशी खाऊंगी। आई लव भात। तो इसलिए जब मैं आपके यहाँ आऊंगी तो प्लीज मुझे बेपनाह मोहब्बत दीजिएगा और मुझे खूब सारा माछी झोल खिलाइएगा। मेरी बंगाली बहुत ही है ही नहीं समझिए, मगर हाँ मुझे एक चीज तो बंगाली में बोलनी आती है, आमी तमालू भालो भाषी। So sweet. और मुझे कुछ नहीं आता, मगर हाँ ये छोटा सा कनेक्ट है, ये हमारा आपका कनेक्ट है। अब जो ये कनेक्ट है, ये ना मैं आपसे छीन सकती हूँ और ना आप मुझसे। आज से पहले ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको, मगर आज हम दोनों बात कर रहे हैं तो कनेक्ट हो रहे हैं ना। मुझे तो लगता है कि हो रहे हैं। और ये कनेक्शन ऐसा है जो एक बारी बन जाता है ना, फिर क्या कहते हैं, डिस्कनेक्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हुँ? यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी एक और सुनाऊंगी, क्योंकि रागिनी ने ग्रीन सिग्नल जो दे दिया मुझे कि आपके पास टाइम है, आप कहानी सुनाइए। नहीं नहीं, आपको ऐसे अपने नहीं छोड़ सकते जब तक हम it's like we are really waiting to unfold and unfold lots of stories from you. You have a bucket full of it. आपके पास बहुत सारी है। क्यों ना हम 2 या 3 तो हम हकदार बनते ही हैं। ओह! मैं तो ऐसी तैयारी करके तो नहीं आई थी, मगर हाँ सुनाऊंगी जरूर। एक कहानी है एक लड़की की, उसका नाम था रिया। रिया देखने में अच्छी थी। मैं तो किसी को भी वैसे भी बुरा नहीं कहती, क्योंकि हम सब ईश्वर के बनाए हैं। हुँ? तो चलो वो अपने आप को सोचती थी कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, और जब ऑफिस जाती थी तो सब उसको ऑर्डिनरी ही ट्रीट करते थे। कद छोटा था, छोटे छोटे बाल थे, और काम में अच्छी थी, अपना काम शिद्दत से करती थी। बहुत क्या कहते हैं, बहुत फोकस के साथ करती थी कि भाई काम है, मैं यहाँ काम के लिए आती हूँ, काम तो मैं अच्छे से करूँगी। तो ऑफिस में जब जाया करती थी तो कभी किसी खास मतलब उसकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी कि किसी ने उसको नोटिस किया हो। वो अपने काम से मतलब रखती थी और बाकी भी अपने काम से मतलब करते थे, और वो ऑफिस में काम कर रही थी। कई साल निकल गए। एक दिन जब घर जा रही थी तो उसने एक देखा कि यहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी दुकान खुली है। सोचा कि चलो मैं दुकान चलती हूँ। तो जैसे ही जाने लगी तो जो शॉपकीपर था वो बाहर आ रहा था। उसने कहा सॉरी, शॉप इज क्लोज्ड, आप कल आइए। तो रिया को लगा अरे बड़ी इंटरेस्टिंग सी दुकान लग रही है, चलो मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है, कल देख लूंगी। तो उसके दिमाग में था कि मैं कल यहाँ जरूर आऊंगी, और वो घर चली गई। अगले दिन सुबह उसने कहा चलो 15 मिनट पहले चलते हैं, उस दुकान में भी एक नज़र मार लेंगे। कुछ अच्छा लग रहा था, एक नई दुकान का मज़ा ही अपना होता है कि यार नई चीज़ नई दुकान, और औरतों को तो आपको पता ही है ना, शॉपिंग बेस्ट थेरेपी। वैसे बेकार में औरतें बदनाम हैं, मैं बता दूं, आदमी भी कुछ कम नहीं होते। तो चलो ठीक है, अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी रिया तैयार हुई। उसकी मम्मी ने कहा अरे नाश्ता तो ढंग से कर लो। उसमें अरे मम्मा मैं कर लूंगी करके वो सैंडविच उठाया और बस बाइट करती हुई निकल गई। और रास्ते में दुकान थी, तो जब वहाँ पहुंची तो अंदर गई। इसने देखा खूब सारे लोग वहाँ पे टोपियाँ ट्राई कर रहे थे। टोपियाँ, हैट्स, अलग 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 टोपियाँ थी वहाँ पे। कोई ब्राइट, कोई लाइट, कोई ऐसी वाली, कोई हैट स्टाइल की, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, काउबॉय हैट्स। सारे टाइप के वहाँ पे हैट्स थे, बड़ी फैसिनेटिंग लग रहे थे। कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, सब वहाँ टोपियाँ ट्राई कर रहे थे। आपको पता है ना टोपी पहनाना क्या होता है। बस वही वाला हाल था। तो आ गई वहाँ पे हमारी सेल्स वुमन। उसने कहा मैम कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो रिया एक टोपी ट्राई करी, देखने लग गई। "हम्म, ऐसे ऐसे, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही थी। उसके बाद उसने एक बहुत खूबसूरत, इनहाईती खूबसूरत टोपी पहनी। और जैसे ही रिया ने वो टोपी पहनी ना, वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी छोटी सी। और आपको पता है ना
बच्चे मन के सच्चे, ऐसा सब कहते हैं और होते भी हैं। तो छोटी सी लड़की ने बोला, ओ आंटी, इट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, कितनी खूबसूरत लग रही है ना मम्मा, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो रिया ने जब ऐसे देखा और सच में ऐसे पहन के थोड़ी देर देखती रही अपने आप को, शीशे में निहारती रही और देखा, उसने कहा हाँ आई थिंक अच्छी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ, एक्चुअली अच्छी लग रही हूँ यार, ले लेती हूँ। तो ये वहाँ पे गई, इसने टोपी वहाँ दी और पैसे पे करे और निकल गई। और जैसे ही निकली एंड सडनली शी फेल्ट वाओ, जैसे ही वहाँ से निकली और ऑफिस की तरफ निकलने लग गई, ऑफिस में जो गेटमैन था उसने दरवाज़ा खोला, कभी ऐसा नहीं हुआ। और रिया को उसने बोला गुड मॉर्निंग मैम। तो रिया ऐसे मुस्कुराई और आगे बढ़ गई और लिफ्ट जाने ही लगी थी कि इतनी देर में किसी ने लिफ्ट रोकी। उप्स, लिफ्ट रुकी और वो अंदर लुक एंड एवरीबडी सेड गुड मॉर्निंग व्हिच वाज वेरी रेयर। कभी रिया के साथ ऐसा नहीं हुआ था। रिया मंद मंद मुस्काई और उसको लगा था कि वाओ आई थिंक आई एम लुकिंग ग्रेट। एंड जैसे ऑफिस गई, suddenly everybody started to notice her smile, her charm, everything about her. सबको लगा कि जैसे कोई नई एम्प्लॉय आ गई हो, जबकि ये वही थी अपनी रिया। और सारा दिन एक दुक्का उसको कोई कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया, किसी ने उसको कुछ कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो रिया को लगा थैंक यू। एंड जैसे जैसे दिन खत्म हुआ, किसी ने उसको बोला कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पी सकती हैं, तो उसने टाइम देखा और कहा ओके, और उसने कॉफ़ी भी पी और हंसी, थोड़ी देर बातें करी। बहुत अनयूजुअल था, 2-3 सालों में कभी रिया के साथ ऐसा सब नहीं हुआ था। रिया ने कहा आह थक गई मैं, आज तो थोड़ा लेट भी हो रही हूँ, क्यों ना मैं टैक्सी लेके घर चली जाऊँ। टैक्सी में बैठी और रिया ऐसे थोड़ा सीट का सहारा लेके आराम करने लग गई और सोचने लगी what a beautiful day I had today. It was a wonderful day. और टैक्सी ड्राइवर ने कोई ऐसा गाना लगाया कि जैसे वो खो सी गई हो, कहीं और पहुंच गई थी। और जैसे ही उसका घर आया तो उसने पैसे दिए और उसने बोला हैव अ गुड डे मैडम। तो उसने कहा थैंक यू। एंड बहुत हैरान थी कि आज कमाल ही हो गया। और घंटी जब उसने दबाई, टिंग टोंग, उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला और जैसे ही रिया को देखा और बोला अरे रिया बेटा, आज क्या, आज तो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है। एंड शी सेड अरे माँ आप भी खूबसूरत मम्मा, इस टोपी ने मुझे बना दिया, आज ही मैंने खरीदी है ना ये हैट। इसने, उसकी माँ ने कहा टोपी ने हैट, क्या बोल रही हो। उसने कहा मम्मा ये रे, अरे मेरी हैट कहाँ गई। 2 मिनट के लिए रिया परेशान हो गई और करने लगी ओ माय गॉड मेरी हैट कहाँ गई, गाड़ी में रह गई, गाड़ी में रह गई, नहीं गाड़ी में तो नहीं रही, कैसे, कहाँ, ऑफिस में रह गई। सोचने लगी ओ गॉड मुझे ऑफिस वापस जाना पड़ेगा, मेरी वो टोपी, आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल डे आई हैड, आज तो कमाल हो गया, मतलब सुबह से लेके शाम हो गई, आई कांट अफोर्ड इट, नहीं आई हैव टू गो गेट दैट कैब। नहीं यार वो हैट तो वहां भी नहीं थी, हैट गई कहाँ। सोचने लगी और थोड़ा दिमाग और लगाया, रिया को याद आया अरे हैट तो मैं दुकान दुकान में मैंने पहनी, मैंने रखी, मैंने ली, पहनी नहीं, मैंने पहनी ही नहीं, मैंने पेमेंट करी, मैंने उसी लगे उतारी थी। ओह मेरी टोपी तो वहीं रह गई थी दुकान में। हाँ रिया की टोपी वहीं रह गई थी, मगर जादू उसी टोपी ने किया था, थोड़ा सा जादू, मगर असली जादू रिया के अंदर से उभरा।
जैसे ही रिया को लगने लगा कि आज मैं कुछ खास लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, वो ऑरा उसके आगे पीछे बढ़ने लगा और उसको लगा कि हाँ, आज मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ कि शायद मैं सालों में नहीं लगी। और वो जब वहां से दुकान से निकली थी ना, उस कॉन्फिडेंस के साथ निकली थी। वो हैट पहनते ही जो उसको कॉन्फिडेंस आया था, और उसने, उस हैट ने ये अंदर की सोच बदल दी, और उस सोच ने उसका ऑरा बदल दिया। वो बाहर से कैसी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो अंदर से खूबसूरत महसूस कर रही थी। सो जो बाहर की चीजें होती है ना, ये बाहर की ही होती हैं। और जब आपको अंदर से लगता है ना, आई एम फीलिंग लवली, आई एम फीलिंग ब्यूटिफुल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 3 Idiots देखी होगी। तो जब ऑल इज वेल करता है इंसान, तो सच में ऑल इज वेल ही हो जाता है। सो इट इज व्हाट रेजोनेट्स फ्रॉम विद इन, और ऐसा स्टर करता है, ऐसा स्टर करता है कि आपको बदल देता है। सो आपकी सोच आपके हाथ में है। और अगर मैं शीशे को देख को कहती हूँ कि आई लुक ब्यूटिफुल, आई विल लुक ब्यूटिफुल, इफ आई एम गोइंग टू बी मिजरेबल, आई विल बी मिजरेबल। सो चॉइस, वो कुंजी, वो चाबी आप ही के हाथ में है और किसी के पास नहीं। सो उस चाबी का इस्तेमाल भी आप ही कर सकते हैं, और सही तरीके से कर सकते हैं, जैसे रिया ने किया। और रिया को बाद में समझ आई। अगले दिन रिया बिना हैट के थी, मगर कॉन्फिडेंस वही था। सो इसलिए हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती टू फील ब्यूटिफुल, टू फील गुड, टू फील ऑल इज वेल। इंटरनल छोटी मोटी ट्यूनिंग करो, रेडियो आप बिल्कुल वैसे बजेगा जैसे आप चाहते हैं। क्यों रागिनी? रागिनी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, सो वाओ दर्शक, आपको नहीं लग रहा कि यू लुकिंग बेटर, यू फीलिंग बेटर टुडे? आई मीन शेफाली जी ने, बिकॉज अभी मुझे अली ने बोला है कि दी नहीं बोलने, ओके, बिकॉज शी लुक्स यंग yeah, and that's what she feels, and that's what she makes others feel, you know, young. Yes. So Shefali ji, it's like सब हमें सबको, you know, you are making us feel so beautiful. I mean, you know, with it's only, ये हमारी सोच के अंदर है कि हम कैसा कर सकते हैं। आज अगर आप मुझे देखें, आज मैं 10 साल पहले रेडियो में आती थी। You know, I was a very renowned speaker at a radio. 10 years, you know, settling the family, सब कुछ मुझे लग गया। You know, I was under the confidence, you know, a woman gets under the thing, you know, it's like family settle करते 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 वो भूल जाती है वो कौन है। And then someone comes, handholds you and makes you feel that you are, you know, अगर अंदर से आए, कोई हमें बताए, या कोई external factor के कारण हमें अंदर से महसूस होए कि we can still do it. And now today, you know, it's like I'm speaking in so many sessions. I know I need to get polished, but still I feel I'm doing better each day. So, I mean, that's what it is. You have to have that thing within you that you are better. You're better than before. क्या बोलते हो शिफाली दी? I completely agree with you, you know, Ragini. Every day we take steps. Every day. Yeah. ये नहीं सोचना होता कि मैं ओह जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं उधर। Remember, life is a journey to be savored and not a destination to reach somewhere. जिंदगी में चाहे आप एक स्टेप लें एंड स्टेप बाय स्टेप आगे ही जाएंगे, पीछे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिंदगी में जो कॉन्फिडेंस है, जो रागिनी अभी बोल रही है, हाँ ये सच है। हम औरतें स्पेशली कई बार अपनी फैमिली को समेटते समेटते
कहीं रुक से जाते हैं और हमारी ग्रोथ भी कहीं रुक सी जाती है। मगर नहीं, ग्रोथ एक फील्ड में हो सकता है रुकी हो, मगर फिर भी आपका कंट्रीब्यूशन जो आपकी फैमिली में आप कर रहे हैं, वो भी तो सीड्स डाल रहे हैं ना, वो भी Absolutely. डाल रहे हैं आप। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर इवन इफ यू आर एट होम। मैं सच पूछूं तो मैं कुछ हूं ही नहीं। सच पूछूं तो ना मैं कोई एस्टैब्लिश स्टार हूँ, ना कोई ऐसी चीज हूँ कि मैं कहूँ कि वाह मैंने बहुत कुछ जिंदगी में अकम्प्लिश किया है। नहीं, मगर मेरा कहना ये है कि मेरी कहानी से बहुत लोग सीख सकते हैं। आई फेल and today I feel better. It's like I achieve and each day I'm doing towards betterment. Every movement, every step that I take, I'm only going forward. और मेरी रेस और रागिनी का रेस का कोई मुकाबला नहीं है और हो भी नहीं सकता। उसकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, हर इंसान की। अगर कुछ देर आप इसको साइड में रख दें और आप अपने आप को कंपेयर कीजिए, जैसे अभी रागिनी ने बताया कि 5 साल पहले या 10 साल पहले वो ये कर रही थी, उसी तरह मैं 5-10 साल पहले बहुत अलग काम कर रही थी। मैं सोचो आप, मैं गांव में थी। मैं गांव आप प्रिंसेस थी ना मालदीव्स की। ये भी बड़ी कहानी है, हाँ ये भी कहानी है। बट फिलहाल तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं गांव में थी और वहाँ पे मैं बच्चों को थिएटर सिखाती थी, कहानी लिखती थी, अपनी कहानियाँ खुद लिखती थी। और मेरी कहानियों में खासियत कह लीजिए या शायद मैं तो खासियत ही कहूँगी, ये थी कि हमेशा इंडियननेस मैंने रखा उसमें। और उसमें मैंने हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी गाने, कुछ ना कुछ म्यूजिक, और कुछ नहीं तो ये बुलेट मेरा फेवरेट। सो कुछ ना कुछ रहा ही है एंड मैंने इसको बहुत इंजॉय किया है। लोगों के साथ बैठकर बच्चों को ट्रेन किया। जब मैं वो सब कर रही थी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे ये करने की वजह से लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, बट सच में हुए, सच में हुए। और आज जब मैं मुड़ मुड़ के देखती हूँ और जब लोग मुझे कहते हैं कि हमने आपका वो सेशन सुना था एंड वी वर वेरी इंस्पायर्ड, मुझे बहुत खुशी मिलती है। खुशी इस बात की कि मेरी वजह से 4 लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। वो अच्छा फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आई एम श्योर जैसे छोटी सी बात है, कोई इंसान खाना बनाने में बहुत माहिर होता है। मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले की बात है, मेरे बेटे ने किसी के घर गया था और उसने मुझे आके बताया कि मम्मा आज मैंने जिंदगी की बेस्ट बेस्ट भेलपूरी खाई। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी थी? कहता है बहुत अच्छी थी मम्मा, बहुत अच्छी थी। और साथ में ही बोला मम्मा आप एक काम करो, आंटी को फोन कर लो और रेसिपी उनसे ले लो। मैं फट से बोला, मैंने कहा क्यों? आप सीख लोगे ना। मैंने कहा देख मोनी, मैं कितना भी चाहूँ ना उन जैसी नहीं बना पाऊंगी। जब भेल खाने का दिल हो, आंटी को फोन लगाओ और बोलो आंटी मैं आ रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है, हर चीज मुझे क्यों करना है? कंपटीशन में आके कोई जो चीज अच्छा या अच्छी करता है करने दो। आपको अगर अपने बच्चों को इनकरेज करना है, हर चीज कंपटीशन में मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में हर इंसान की अहमियत है। अब मेरा बेटा अगर फोटोग्राफर है, उसको फोटोग्राफी अच्छी लगती है, मैं क्यों चाहूंगी कि वो सिंगर भी बन जाए? उसका एक दोस्त है बहुत अच्छा गाता है, दोनों की अपनी अपनी काबिलियत है कि नहीं? मैं जिस काम में अच्छी हूँ, मैं हूँ। रागिनी जिस काम में अच्छी है वो है। सो वाओ, कितना उम्दा फरमाया आपने। You know, it's like I feel yes, these are stories, but it has so much, इतना positivity है इसमें। You know, whatever शिफाली दी ने बताया, you know, शिफाली जी ने बताया,
आपको मुझे जी भी बोलने की जरूरत नहीं है. You can just call me Shefali because Okay. I'm just an ordinary storyteller, please. No, but then you're so inspiring, you know, it's like with the stories जो आप बता रहे हो हमारे दर्शक को, हर story में, you know, you are actually getting the Hindi essence. You're also giving some, you know, takeaway to them. And also you're creating that suspense and you're creating that mood. I mean, wow, we had such a nice collaborative, you know, evening today. Isn't it, you know, you must have, आप लोग सब कोई पॉपकॉर्न लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ये बता दीजिए. ये बात तो सही है, पॉपकॉर्न लेकर या चिप्स लेके बैठना तो जरूरी है, और साथ में कोक. So, you know, Shefali ji, now coming back with all your stories, we also want people to know about, you know, you yourself as a person, because जब मैं आपका TEDx देखी, you know, I was really wanting to hear, you know, I love hearing TEDx talks of people. When I heard your TEDx talk, you know, I had goosebumps, you know, I had, you know, एक कोई हमारी बाहर, you know, भारत की बेटी, you know, we have people in the army, you know, doing things for the country. You are doing for your mom, you're doing that, they're doing for Bharat Ma, you're doing your own, you did for your own mom. So we want that experience of yours to be shared, because, you know, that is what actually gave me real goosebumps. Like, when you can do it, we all can do it. We have organs in our body which, you know, with our death it becomes, you know, वो चला जाएगा, मिट्टी बन जाएगी. इससे अच्छा हम किसी को दे के जाएं, हम किसी का भला करके जाएं. You know, it was something that actually inspired me. You know, it's like, so we want to, हम चाहते हैं आप खुद बताएं अपना experience so that people get motivated. Very beautifully said, Ragini. देखो, मुझे इतना मालूम है कि हाँ, आपने TEDx का जिक्र किया. That happened. It was somebody else's dream and I realized it. It happened. Thank you, universe. बट मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, ये जो ऑर्गन डोनेशन की बात है, अब ये बहुत लंबी कहानी है. लेट्स नॉट डू द कहानी टुडे, बट हाँ, आई डोनेटेड अ पार्ट ऑफ माई लिवर एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई वाज एबल टू डू इट. हमारी सोच ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें लिमिट करती है. हमारी सोच हमें छोटा या बड़ा बनाती है. एक सोच ऐसी है जिससे आप पल में बदल सकते हैं. मैं किसी और की सोच नहीं बदल सकती, न मेरे बारे में, न किसी और के बारे में, मगर मेरे हाथ में वो है कि मैं अपनी सोच बदल सकती हूँ. मैं अपनी सोच को गिरा भी सकती हूँ और अपनी सोच को उठा भी सकती हूँ. और उस टाइम मुझे ये लगा, my mom was suffering with liver cirrhosis and कहते हैं ना, कभी कभी इंसान सोचता नहीं है और बस कर देता है. ये वैसा मोमेंट था. मौका आया, I gave a part of my liver and yes, I am a donor. And at that point of time it was scary and but वही वाली बात है, अगर मैं डर जाती तो कैसे चलता. जो डर गया सो मर गया. So मैं डरी नहीं. I had to put a brave face and because not only one, we had two people from the same family, myself and my mom. अगर मैं डर जाती तो बाकी सबकी भी हिम्मत टूट जाती. तो मैं तो लास्ट मिनट तक मुस्कुराती रही. और इट वाज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन ऑपरेशन. 17 घंटे का था. 187 stitches and lot of commitment. बट आज जब अपनी माँ को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. सच पूछिए तो जब करवा रही थी, जब मैंने हामी भरी, बिकॉज इतना बड़ा ऑपरेशन होता है. एक्चुअली पीपल कम, दे टेक योर प्रॉपर वीडियो बिफोर यू हैव टू साइन पेपर्स एंड यू हैव टू बी वीडियोड एंड इट्स स्कैरी.
एंड बाकी डोनर्स और सबको मिलवाते हैं, और उस टाइम आप थोड़ा डर भी जाते हो थोड़ा सा, बट हाँ मैं नहीं डरी। अंदर से डर रही थी बट बाहर से दिखाया कि नहीं डरी, और सब ठीक है। दिस हैपेंड इन 2010 and today is 2020. So extra 10 years of being with my mom, extra 10 years of seeing her around. मेरी माँ जब हंसती है, जब खुश होती है, घूमती है, फिरती है, खाती है, बाहर जाती है, वो हर सांस जो वो लेती है, और अगर फिर से मुझे जिंदगी देनी पड़ी मैं दूंगी, जस्ट टू हैव हर अराउंड। और ये मैं क्यों, कोई और भी मेरी जगह होता तो शायद उतने ही आराम से करता। बट हाँ, रागिनी ब्यूटिफुली सेड, देखो हम मिट्टी से जने और मिट्टी में ही जाएंगे। और जो हम इतनी प्राइड लेते हैं ना इसमें, सच में जितना हम बाहर से चमकाने में लगे हैं, थोड़ा सा उसका फ्रैक्शन अंदर से अपने आप को चमका ले, वो आपके ज़्यादा काम आएगा, सच में आएगा। मुझे मालूम है कभी कभी हमारे को ह्यूमैनिटी से कुछ उठ सा जाता है कि इंसानियत क्या है, मगर इसके लिए मेरे पास एक ही जवाब है। अगर सामने वाला इंसानियत नहीं दिखाता या नहीं है उसमें इंसानियत, क्या मैं अपनी इंसानियत उसके लिए छोड़ दूँ? क्या मैं भी उसी की तरह उसी के स्टैंडर्ड पे गिरा हूँ? फिर हम लोगों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? कहा था ना, सोच सोच आपके पास है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। क्या हम आज़ाद हैं अपनी सोच से? क्या हम आज़ाद हैं? हाँ, सही माने में इसी चीज़ में आपको आज़ादी चाहिए, बाकी चीज़ें तो वेट कर सकते हैं। बल्कि रागिनी, यहाँ पे मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ, टुडे आज का दिन तो ऐसा है शिफाली दी, जितना आपको सुने उतना कम है। तो जो आप सुनाना चाहेंगे, मुझे लगता है कि हमारे लिए बस एक बोलते हैं ना कि एक समुद्र है आप, हमें बूंद बूंद से हमें आज एम्पावरिंग लाइफ्स को दे दीजिए, दर्शकों को दे दीजिए। सो स्वीट। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ये, इनफैक्ट शायद कल परसों ही कविता लिखी है, कुछ लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि मैं आज़ाद के बारे में बात कर रही हूँ, सोच की बात कर रही हूँ। इस भीड़ में अगर तू सुन सके खुद की, इस भीड़ में अगर तू सुन सके खुद की, तो तू सच में आज़ाद है। सपने बुन अगर कर सके अपने मन की, तू सच में आज़ाद है। आज़ाद है तू जब कह सके जो मन में है तेरे, बनावटी मुस्कान फेंक, सच में तू हंस के देख, तू सच में आज़ाद है। इश्क है, इश्क है तो कह दे, हाँ हाँ मुझे मोहब्बत है, तू सच में आज़ाद है। निकल पड़ बनकर परिंदा तू, निकल पड़ बन के परिंदा तू, आसमां छू ले, तू सच में आज़ाद है, तू सच में आज़ाद है। वाओ, कितना, खैर बहुत अच्छा फरमाया आपने। इट्स ओनली अबाउट योर थॉट्स, you can make yourself independent about, Absolutely, absolutely. It's all in the mind. It is all in the mind. And yeah, please अपने आप को उभारो और छोटी चीज़ों से ऊपर हो जाओ। बिल्कुल। जेन्युइनली जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स के लिए, सबके लिए, जो भी हमें सुन रहा है, मैं यही कहूँगी कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, मेक योर ओन सनशाइन, MYOS, एंड आई कंप्लीटली बिलीव दिस। सच में जिंदगी मिले ना दोबारा, तो इसको अच्छे से गुजारिए और खूबसूरती से गुजारिए, क्योंकि आप हैं और खाली आप ही हैं जो आपका बेस्ट वर्जन हो सकता है।
ना मैं कुछ और हो सकती हूँ और ना कोई और मैं हो सकती हूँ। थैंक यू शिफाली दी। जी तो नहीं कर रहा है कि आज आपसे वी डोंट वांट टू लीव यू एट ऑल, बट No, जाना तो पड़ेगा, ये हाँ, उसूल है, it's a good ये time. इट्स It's a good time to उसूल, say bye. It's a good time to say bye. एक ही बार में आके इतना बोर नहीं करना चाहती मैं सबको. there is lots to hear from Shefali Di. I promise you all to get her back. We'll have some series and more connects with her, with other episodes. Shefali Di, if she permits, if she has time further for us, we'll get her back. But it was grateful to have her today. I mean, on this occasion of Hindi Divas Day, wherein she's doing so much for India, so much for the language. वो सब जगह जाते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बूढ़ों के साथ, एज पीपल के साथ. she goes and spends time, she shares her thoughts, she shares beautiful stories with them. बहुत अच्छी कहानियां बताती है, कहानियों के साथ सबके अंदर में परिवर्तन करती है. वो खुद इतनी प्योर, doesn't she look very pure, people? Yeah, so she's sharing that purity with everyone. She's making that, she's creating that aura amongst everyone. So we want that aura in empowering lives also. We'll get her back, promise. With this promise, I want your permission to exit today. Thank you, people. Thank you, Shefali Di. Ragini, I need to thank everybody. Thank you मुझे यहाँ बुलाने के लिए. Empowering Lives. Thank you so much. And thank you, Ragini, and thank you, Ali, for this session. Thank you so much. It means. We are very grateful to you, Shefali Di. नहीं, Yeah. बिल्कुल भी नहीं. आपका सच में it's that love and concern जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ. And I loved sharing my stories. हाँ, मेरी कहानियाँ, मैं कहानियों के थ्रू लोगों को इंस्पायर करती हूँ. That's my dream. Yeah. So she has a series called Creating Smiles. You can watch it at her YouTube channel. It's amazing, with a collection of stories. Don't miss it out. Don't miss it this weekend. Have your plans to share all the stories, to read, to hear all the stories by Shefali Chopra, none other than Shefali Chopra. That's all for today. Thank you, people. Bye for now.